So, in the beginning, the author, the narrator, Nick Middleton, has shown the natural beauty of Ravu, and he has explained that the half moon, which was floating between the perfect blue sky, was literally flawless. And it was the early morning when they bid their goodbyes and extended each other the warmth and pleasure, and they started their journey from Ravu in the early morning. So the chapter starts with a flawless half moon floated in a perfect blue sky in the morning. We said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. In this first paragraph, Nick Middleton has explained the natural beauty of Ravu, and he says कि जिस morning को they started their journey, the cloud was clear, the sky was perfect blue, and the moon was half, and it was flawless. और जो clouds थे वो किसी फ्रेंच लोफ की तरह लग रहे थे. लोफ क्या होता है? लोफ इज बेसिकली ब्रेड को एक जब पूरे पीस के अंदर पकाया जाता है और फिर उसके स्लाइसेस किए जाते हैं, तो जो पूरा एक ब्रेड का जो लोफ होता है जिसको बाद में स्लाइस किया जाता है, ठीक है. नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, Lamaho and said she wanted to give me a farewell present. One evening, I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah, and she had said that I ought to get some warmer clothes. Now, when they were about to leave, so Lamaho, the lady where they were staying in Ravu, जिसके घर पर वो रह रहे थे, उसने जाते वक्त एज अ फेयरवेल गिफ्ट उसको एक शीप स्किन का बना हुआ कोट गिफ्ट किया. एंड वो इसीलिए क्योंकि कुछ दिन पहले डैनियल के थ्रू, बिकॉज डैनियल वाज द ट्रांसलेटर हियर, डैनियल के थ्रू लमाओ को इस चीज का पता चला था कि निक जो है वो माउंट कैलाश पर जाना चाहता है कोरा करने के लिए. न्यू दैट इट वुड बी वेरी कोल्ड देयर, तो इसीलिए उसने एक शीप स्किन का बना हुआ कोट उसको गिफ्ट किया, ठीक है. Satan sized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared. Drogba, sir. Now, after wearing the coat, ठीक है, he was looking like any other shepherd of Ravu. ठीक है, तो इसलिए जब उसने वो कोट पहना तो सेतन ने उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और फिर उसने बोला ड्रोगबा सर, like he wanted to give a compliment. He wanted to give a compliment to Nick that he was looking like any other local of Rabu. ठीक है? We took a shortcut to get off the Changtang. Satan knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. But no problem, sir, he assured us. If there is no snow, what was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. Now, they started their journey, and because Satan was a local, he was aware of all the shortcuts. So he said that it would be better अगर हम एक shortcut लेते हैं, and we will have to go southwest for that. And Satan जब एक शॉर्टकट लेने के लिए बोलता है तो वो बोलता है कि हालांकि उस शॉर्टकट के अंदर देयर वुड बी अ लॉट ऑफ हाई एंड माउंटेन्स जिनको हमें क्रॉस करना पड़ेगा, और इफ we are not able to find any snow there, then we won't have any problem. तो निक पूछता है कि what is the probability कि हमें वहां पर स्नो मिलेगी और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो सेतन बोलता है कि इसके बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पर कितनी स्नो हमें मिलती है. So from the gently rolling hills of Ravu,
The shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. वो बोलता है कि रावू के हिल से नीचे उतरते वक्त, बिकॉज दे वर गोइंग साउथ वेस्ट, तो नीचे उतरते वक्त वो सीधा प्लेन्स में पहुंचते हैं एंड प्लेन्स में वहां पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ वहां पर कुछ गेजल्स है. नाउ गेजल्स आर बेसिकली अफ्रीकन या फिर एशियन मैमल्स हम उनको बोलते हैं. दे लुक मोर लाइक एनी बफेलो. ठीक है, तो बोलते हैं कि सिर्फ वो दिखाई देते हैं वहां पर, और वहां पर जो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सूखी घास है वो उसको खाते हुए दिखाई देते हैं. वो सिर्फ जब थोड़ा बहुत आवाज होता है वो एक बार ऊपर मुड़कर देखते हैं, दे गेट बैक टू देयर निबलिंग. ठीक है. Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. अब वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो ग्रास जो है वो खत्म होती जा रही थी और स्टोनी जो एरिया है, स्टोनी टेरेन जो है वो स्टार्ट हो रहा था, और वहां पर उनको एक पूरा झुंड दिखाई दिया वाइल्ड एस का, जंगली गधों का. अब जब वो दिखाई भी नहीं दिए तो उससे पहले ही सेतन ने बता दिया था कि एक झुंड आने वाला है. क्यों? बिकॉज दे वर वर्किंग सो टाइटली कि जब वो चल रहे थे तो एक धूल का गुबार सा बन रहा था दूर से ही, और बिकॉज सेतन वाज लोकल, ही न्यू कि अगर ये धूल का गुबार बन रहा है तो व्हाई इज इट. ठीक है. तो जैसे ही वो उसको क्रॉस करते हैं तो निक मिडलटन जो है वो नोटिस करता है कि द वाइल्ड एसेस वर वॉकिंग इन सच अ मैनर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिलिट्री की परेड चल रही हो. they were so disciplined, they were so intact that it felt like as if किसी मिलिट्री की एक टुकड़ी की कोई परेड चल रही हो. ठीक है. The route was filled with as hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbas tending their flocks. अब जैसे जैसे वो दोबारा से स्टोनी एरिया को छोड़ के दोबारा से हिल्स पर चढ़ने लगे थे तो उनको दिखाई दिया कहीं कहीं पर कई शेफर्ड्स हैं और वो अपनी फ्लॉक्स को जो वहां पर जिनको लेकर आए हुए हैं उनको संभाल रही हैं. Sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. और जैसे जैसे वो लोग वहां से होते हुए जा रहे थे तो जो ड्रोकबास थे, जो शेफर्ड्स थे, लोकल्स थे, वो गाड़ी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे, बिकॉज दे आर नॉट अकस्टम्ड ऑफ वॉचिंग कार्स देयर. ठीक है. तो जब भी कोई कार वहां से आती है तो वो उसको बड़े ही ध्यान से देखते हैं, और इनफैक्ट दे वेव समटाइम्स टुवर्ड्स दी कार्स. और जैसे ही कार जो उनके शीप्स हैं उनके पास से गुजरती है तो वो शीप्स एकदम से अपने आप को बचाने के लिए वापस से उनकी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं. As we continue to draw closer, okay, we have done this. These shaggy monstrous. We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guards. वो बोलते हैं कि अब हम थोड़ा सा और आगे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर टेंट्स लगे हुए हैं. ठीक है. डार्क कलर के कुछ टेंट्स हैं, और तब उनको पता चलता है कि टेंट्स जो हैं वो नोमाड्स के हैं. नाउ नोमाड्स आर द पीपल who do not have a permanent residence, जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. इन हिंदी वी कॉल देम बंजारास, राइट. तो जो नोमाड्स हैं उनके टेंट्स हैं, और उनके टेंट्स की जो रखवाली करते हैं वो हैं टिबेटन मैस्टिफ्स. नाउ ये एक डॉग्स की ब्रीड है और दे आर सो ह्यूज, दे लुक लाइक एनी बेयर बेसिकली. वो डार्क कलर के, ब्लैक कलर के हैं और दे आर वेरी ह्यूज. ठीक है.
These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. बोलता कि जब उनको इस चीज की realization होती है that उनकी कार जो है उनकी तरफ आ रही है, तो वो इस तरीके से इतनी जोर से भागते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी गन में से कोई बुलेट छूट गया. एंड दे आर फियरलेस, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और वो सीधा आकर उनकी कार के आगे खड़े हो जाते हैं. These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. वो बोलते हैं कि इनके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, ये डार्क नाइट से भी ज्यादा डार्क हैं, और इनके गले के आसपास एक ब्राइट रेड कलर का इनको पट्टा पहनाया जाता है, और ये जो भौंकते हैं तो उनका जो जॉ है दैट इज वेरी मैसिव, और उनकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है.